अमरावती की ताईद में जारी किसानों के एहतजाज के 300 दिन मुकम्मल हो गए हैं। एहतजाज के 300 दिनों की तकमील पर विजयवाड़ा गुंटूर के कई देहातों में किसानों ने एहतजाज किया। इस दौरान अमरावती जेएसी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान राजधानी अमरावती के लिए अपनी अराजी देने वाले किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि दारुल हुकूमत की तामीर के लिए उन्होंने 33,000 हेक्टर अराजी हुकूमत के हवाले की है। जगन हुकूमत ने 3 दारुल हुकूमत का ऐलान करते हुए किसानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमरावती की शान शौकत को खत्म करने के लिए वाईसीपी हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके अलावा वाईसीपी लीडर्स भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमरावती की ताईद में अब तक 90 किसानों ने खुदकुशी की है। हुकूमत को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को इंसाफ मिलने तक तेलुगु देशम पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर लोकेश के अलावा टीडीपी रुकन पार्लियामेंट गल्ला जयदेव व दीगर लीडरों ने एहतजाजी किसानों से मुलाकात करते हुए अपनी ताईद का ऐलान किया। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज जारी है। अमरावती वुमेन्स जेएसी लीडरों ने विजयवाड़ा के तहसील दफ्तर पर एहतजाज किया। अमरावती जेएसी ने तमाम तहसीलदार दफातर पर एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाजी खवातीन ने 1 स्टेट 1 कैपिटल का नारा दिया। अमरावती जेएसी लीडर पद्मावती ने मरकजी और रियासती हुकूमत से अमरावती को ही दारुल हुकूमत बरकरार रखने की अपील की। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। Parirакshana JAC, along with the farmers and the women and the students, we are practically on the roads every day. From last 300 days, the protests are going on to save Amaravati and to save Andhra Pradesh. But Jagan Mohan Reddy is very adamant and he is stubborn to take back his decision, dividing the state of Andhra Pradesh into 3 parts, which we strictly condemn. And the 5 crore people of Andhra Pradesh are demanding only 1 state for Andhra, 1 state, 1 capital. Again, I request the state and the central governments to take a proper decisions and not to go against the people's wishes of Andhra Pradesh to save Amaravati and to save Andhra Pradesh. In this process, only on 300 days, Amaravati Parirакshana JAC gave a call to protest in front of all the revenue offices. That is the reason all the political parties, all the welfare organizations and all the other organizations, women and the farmers on roads protesting, demanding for 1 state, 1 capital. That should be only Amaravati as a single capital for Andhra Pradesh. Please save Amaravati and save Andhra Pradesh. I am demanding the central government also stop playing games and please consider this, intervene with the and please save Amaravati and save Andhra Pradesh. दारुल हुकूमत अमरावती की ताईद में जनसेना पार्टी की जानिब से भी एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। विजयवाड़ा के धरना चौक में जनसेना पार्टी की जानिब से 1 रोज़ा धरना दिया गया। इस दौरान जनसेना पार्टी के मकामी लीडर महेश ने बताया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी रियासत के 5 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा देने वाली अमरावती जेएसी की ताईद का ऐलान किया। మద్దతుగానే ఈ రోజున జనసేన పార్టీ విజయవాడ తరపున రైతుల దీక్షలకి సంఘీభావం తెలియజేయడానికే ఈ రోజున సామూహిక నిరసన దీక్ష చేస్తా ఉన్నాం। మరి ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు లేవు, పరిశ్రమలు లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు, ప్రపంచ బ్యాంకుల్లో ఎక్కడ కూడా ఆర్థిక సాయం చేయట్లేదు। అదేవిధంగా ఎంఎన్సి కంపెనీలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడనటువంటి పరిస్థితి। దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని ఎక్కడో తెలియకపోవడమే। రాజధానిని 3 ముక్కలు చేయాలి, తద్వారా తాను ఒక్కని మాత్రమే అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానాన్ని చూసి ఈ రోజున అన్ని ప్రపంచ సంస్థలు కూడా భయపడే ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూడట్లా। అందుకనే ఒక్క పెట్టుబడి రాలేదు, ఒక్క పరిశ్రమ రాలేదు। 40 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఈ రోజున ఉద్యోగాలు లేక రోడ్డు మీద సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నారు।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव है जो आइंदा 12 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने साहिली शिमाली केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा और साहिली कर्नाटक में औसत से तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को आज और कल समुद्र में न जाने की हिदायत भी दी है। मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान साहिली आंध्र में तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान फी घंटा 7 किलोमीटर की रफ्तार से साहिल की जानिब आगे बढ़ रहा है। तूफान के सबब शिमाली आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में अभी से ही तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। मशरकी और मगरबी गोदावरी के अलावा कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम अजला में आइंदा 24 घंटों तक बारिश हो सकती है। मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि इन अजला में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा खत्म होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 75,517 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 5,210 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से मुतासर 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रकाशम जिले में सबसे ज्यादा 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में अब तक कोरोना से 6,224 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने यूजी इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। रायलसीमा यूनिवर्सिटी ने रवा माह की 17 तारीख से इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सदर नूर मोहम्मद ने कहा कि एक जानब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, करनूल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, ऐसे में इम्तिहान मुनक्किद करने ठीक नहीं है। 17 तारीख को एग्जाम्स है डिग्री के एग्जाम्स की वजह से कोरोना इतना प्रॉब्लम हो गया पूरे करनूल डिस्ट्रिक्ट में। 60 पर 7,000 आदमी कोरोना केसेस है और करनूल नहीं पूरी दुनिया में कोरोना केसेस है। एग्जाम्स हमारे करनूल स्टेट में दिए डिग्री एग्जाम्स के बच्चों के लिए। एग्जाम्स में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं। और रियालसीमा यूनिवर्सिटी में ना डीएम है ना रजिस्ट्रार है। हम लोग उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करें या प्रमोट कर दे, क्योंकि बच्चों कोरोना के अंदर हर एक जना परेशान है। ऑनलाइन क्लासेस में कोई आधुनिक शाही ईदगाह की तामीर के लिए रकम मंजूर होने के बावजूद अभी तक जारी नहीं की गई है। शाही ईदगाह कमेटी के अरकान ने आज मकामी रुकन असम्बली से मुलाकात करते हुए रकम जारी करने का मुतालबा किया। ईदगाह कमेटी के सदर व खतीब अली कासमी ने कहा कि 1 साल कबल ईदगाह की तामीर के लिए रकम मंजूर की गई थी, मगर अभी तक जारी नहीं हुई है। उन्होंने ईदगाह की तामीर के लिए मंजूर करदा रकम को जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। और कब्रस्तान कमेटी वाले आके मिले, ईदगाह का जो फंड्स है 2 करोड़ 30 लाख चिल्लर, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर में है, हमारे साई प्रसाद रेड्डी साहब भेजे हैं। और ईदगाह का भी 69,50,000 है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर। करनूल में आंध्र प्रदेश बीडी वर्कर्स यूनियन की जानिब से हाउसिंग कॉरपोरेशन दफ्तर के बाहर 3 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हुआ है। इस मौके पर तंजीम के सदर इकबाल हुसैन ने बीडी वर्कर्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने और अलॉट करदा अराजी के डॉक्यूमेंट्स फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीडी वर्कर्स ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रकम भी जमा कर दी है, बावजूद इसके उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीडी वर्कर्स को 5,000 रुपए का डीडी कलेक्टर यहाँ पर देके जो बेनिफिशियर्स के तरफ से लिए 5,000 रुपए जोलापुरम सर्वे नंबर 174, 175, 176 में हमारे पूरे अध्ययन को पट्टे देना को हमें डिमांड कर रहे हैं। बाद में वो हाउसिंग कॉलोनी में बीडी हाउसिंग कॉलोनी में सीसी रोड्स, पास नाले सफाई, पास इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े गुंडुआ है चलने के से घर बनाने से पोल्यूशन नहीं, उसको से आसान घर को हमें सीसी रोड डालना को डिमांड करते हैं। ये डिमांड पूरा हुए तक हमें लगातार हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो सके तो कलेक्टर ऑफिस पे पूरा कलेक्टर ऑफिस के ऊपर भी जाति पड़ती है। हमें डिमांड कंप्लीट हुए तक हमें लगातार हमें करते ये एक जना को एक नहीं है। तो आज एमएलए भी ऑफिस काम भी है तो भी उनको मेमोरेंडम दे, आज तक उन्होंने भी क्या करने की पोजीशन नहीं है। हमारे ऊपर उल्टा SC ST केस दाग बनाए तो भी एमएलए देख को भी देख रहे।
बज़्म आयना करनूल की जानिब से मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। मुशायरे में करनूल और पड़ोसी ज़िला कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। इस मौके पर बज़्म उर्दू के रुकन अब्दुल जलील इरम ने कहा कि आलमी वबा कोरोना की वजह से मुशायरे नहीं हो पा रहे थे। अब कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी देखने के बाद दोबारा मुशायरों का इनकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए बज़्म आयना करनूल संजीदा है। एक अरसे के बाद जैसा कि पूरी तरह दुनिया जूझ रही है कोरोना की वजह से, ये जहाँ पर पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम था, वहीं पे अदबी और दीनी महफिलें भी साकित और जामिद हो गई थी। तो अब हालात चूँकि साजगार की तरफ लौट रहे हैं, तो यहाँ पर करनूल में बज़्म आयना के ज़ेर परस्ती जो माहाना मुशायरा बिलानागा हुआ करते थे, उसका सिलसिला फिर शुरू किया गया है। उर्दू की बक़ा के लिए यहाँ पर अदबी और इल्मी ज़ौक़ रखने वालों के लिए, उनकी तशनीकी को बुझाने के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए हम माहाना मुशायरा मुनक़िद करेंगे। तकरीबन सन 2010 से बिलानागा बज़्म उर्दू के मुशायरे होते रहे, लेकिन कोरोना ये बला फ़िज़ा की वजह से बंद हो चुके हैं। और इसमें बहुत एक दूरी आ गई थी, और अल्लाह के फजल करम से आज हम सब इकट्ठे बैठ गए और बज़्म उर्दू में बज़्म आइना की तरफ से जो तकरीबें हो रही हैं, अल्लाह ताला उसे कामयाब करते रहें। उर्दू हमारी जान है, उर्दू जो है हम अहले ज़बान हैं, इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते रहें। मैं अपुटा की जानिब से बज़्म आइना का जो है बहुत SDPI ने हाथरस मामले की मजम्मत की और यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अब्दुल वारिस ने योगी हुकूमत पर समाज को बांटने का इल्ज़ाम लगाया, पसमानदा तबक़ात से इंसाफ करने की मांग की। वाल्मीकि मामला, जो वाल्मीकि की लड़की जिसके ऊपर रेप करके उसको जलाया गया रात के तौर पर, रात में, तो वहीं ठाकुरों का एक ग्रुप ये बोलता है कि हम ठाकुर हैं, हम उतर जाएंगे तो हम देखेंगे। यानी ग्रुप आपस में खाना जंगी का मामला लाए जैसा हमको नजर आ रहा है। जिस तरीके से CAA NRC के बारे में हुकूमत बिल पास करने के बाद RSS के प्रचारक लोगों को किस तरीके से इसकी तायद में उतारी थी, हिमायत में, उसी तरीके से ठाकुरों का ग्रुप भी हाथरस के विक्टिम्स के खिलाफ उतार रही है। करनूल के 3 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 ATM से रकम चोरी करने की कोशिश के इल्जाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। करनूल DSP वेंकट ने मीडिया को इसकी तफसील बताई। 4 ATM సెంటర్స్, ఒకటేమో కెనరా బ్యాంక్ నంద్యాల చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉంటుంది, తర్వాత ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ బిషప్ చర్చ్ దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఇండియన్ బ్యాంక్ 108 దగ్గరలో ఉంటుంది, తర్వాత ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈ గాయత్రి ఎస్టేట్ దగ్గరలో ఉంటుంది. ఈ 4 ATMs అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఎలాంటి నగదు పోలేదు. ఈ మొత్తం దీన్ని ఉద్దేశంతో కేవలం ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది నేరమే కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా సెక్షన్ 380 రెడ్ విత్ 511 కింద 3 టౌన్ CA గారు తన సిబ్బంది ఈ करनूल जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर के फिकरप्पा ने ग्रेस कैंसर रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। 5K रन कैंसर पर शऊर बेदार करने के लिए किया गया। इस मौके पर जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर के फिकरप्पा ने कहा कि जिला भर में ये प्रोग्राम अमल में लाया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस सरबराह गौतम सॉन्ग ने विजयवाड़ा में ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़रिए इत्माम ग्लोबल वर्चुअल रन 2020 को झंडी दिखाकर रवाना किया। DGP ने विजयवाड़ा में 5K रन को झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि इस रन का मकसद आवाम में कैंसर से मुताल्लिक आवाम में शऊर बेदार करना है। ग्रेस फाउंडेशन की जानिब से दुनिया के 103 ममालिक में रन के लिए 1.3 अफराद ने अपना नाम रजिस्टर करवाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।